according law of mass action, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ एक्टिव मास। देखिए, एक्टिव मास से मतलब है मोलर कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी के टर्म में हम कंसंट्रेशन लेते हैं। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है या लॉ ऑफ एक्टिव मास है, इट वाज गिवन बाय गुल्डबर्ग। अकॉर्डिंग टू गुल्डबर्ग, if in a reaction A and B combines to form C plus D, and after some time C plus D combine to give A plus B, that is reaction is reversible, then the rate of forward reaction will be directly proportional to the product means multiplication of molar concentrations of all the reactants participating in the chemical reaction। जब कभी भी हमें किसी सब्सटेंस का मोलर मास लिखना होगा, एक्टिव मास लिखना होगा, then we always write in a square bracket. Whenever we use square bracket, it shows that we are representing the molar concentration, that is concentration in mole per liter. So rate of forward reaction, I could write RF, and to remove the sign of proportionality, we use a constant called Kf, which is the rate constant for forward reaction. And this is A, molar concentration of A into molar concentration of B. Similarly, rate of backward reaction can be written as, or directly proportional to, the molar concentrations of products. भाई सी और डी प्रोडक्ट्स में है तो इनकी मोलर कंसंट्रेशंस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। And to remove the sign of proportionality, we use a constant called Kb, which is called rate constant for backward reaction। आप सभी बच्चों को मालूम है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम पर rate of forward reaction, yes, becomes equal to rate of backward reaction। So we will put the values of Rf and Rb here। Kf, ये वाला molar concentration of A, B, and rate of backward reaction, Kb, molar concentration of C, and molar concentration of D। We could also write this in this form: Kf is upon Kb is equal to molar concentration of products upon the product of molar concentrations of reactants। आप देख सकते हैं ये जो Kf और Kb हैं, they are the rate constant for forward reaction and rate constant for backward reaction। constant हैं तो दो constant का जो ratio है, that always be a constant value, and this constant is called equilibrium constant। And if we are taking molar concentration, then we write Kc, or somewhere you can also see only K। So it is understood that it is a molar concentration. It is the equilibrium constant at molar concentration C, which is the ratio of product, that is multiplication of molar concentrations of products to the
product of molar concentrations of all the reactants participating in the chemical reaction. One thing you have to learn, if stoichiometric coefficients are there, then these stoichiometric coefficients are raised to the molar concentrations of the reactants and products respectively, like this. Here small c, this is small d, small c, small d, small a, small b, small c, small d, small c, small d, like this. So if the stoichiometric coefficients are present, then these stoichiometric coefficients need to be raised on the molar concentrations of reactants as well as of products. And now we can define equilibrium constant. Equilibrium constant is the ratio of product of molar concentrations of products to the product of molar concentrations of reactants raised by power terms as per the stoichiometric coefficient of the reactants and products. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? ये रेशियो है किसका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू multiplication of molar concentration of reactants, where all molar concentration terms are raised by stoichiometric coefficients as per the balanced chemical equation. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या रहेगी? कांस्टेंट. At a particular temperature, the value of equilibrium constant will remain constant. As soon as you change the temperature, the value of equilibrium constant will be changed. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में बात कर रहे हो तो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो सब क्योंकि कांस्टेंट होंगी. आपको मालूम है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है. इसलिए ये जो रेशियो है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा, व्हिच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है केसी की वो बहुत ज्यादा आती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. तभी तो केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी जब ये न्यूमरेटर में जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन से काफी ज्यादा. अगर केसी की वैल्यू बहुत बहुत कम है इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन द रिएक्टेंट. इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है यानी कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स, इसका मतलब रिएक्शन लगभग लगभग कंप्लीशन की तरफ है क्योंकि ज्यादातर रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? प्रोडक्ट्स में. तभी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आ रही है. अगर केसी की वैल्यू बहुत कम आ रही है इसका मतलब रिएक्शन अभी अभी स्टार्ट हुई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है देन द प्रोडक्ट. ठीक है. और अगर केसी 1 आ जाए इसका मतलब रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनका प्रोडक्ट
और रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट वो इक्वल है, तभी केसी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। हाँ, लेकिन कंसंट्रेशंस दोनों की ही प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की क्या रहेंगी, कांस्टेंट ही रहेंगी। मैं कुछ इक्वेशंस के लिए आपको केसी की वैल्यू लिख कर दिखाता हूं, देखिए। तो हमें इन इक्वेशंस के लिए, रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है हमें। ये लिखने से पहले दो बात आप समझ लीजिए। सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं आर टेकन टू बी यूनिटी, दैट इज 1। सॉलिड्स और लिक्विड की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो 1 लिया जाएगा। ऐसा इसलिए है कि जो मोलर कंसंट्रेशंस हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं मोलरिटी के फॉर्मूले से ना, नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। मोल्स कैसे निकालते हैं हम, ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप देखिए, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है, कोई भी सब्सटेंस अगर रिएक्शन मिक्सचर में आपने ऐड किया है, तो आप उसके ग्राम, जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट अमाउंट रहेगा। किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो आपको मालूम है वो एक डेफिनेट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती किसी सब्सटेंस का मोलर मास बार बार। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम पर मोल है तो आपको मालूम है वो 100 ग्राम पर मोल ही रहेगा, वो बार बार चेंज होने वाली चीज नहीं है। और आपको मालूम है जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट वैल्यू की है। तो ये सब वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये सब क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और सभी कांस्टेंट वैल्यू का जो रेशियो या प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा। इसलिए सॉलिड्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं वो क्या लेते हैं हम, 1 लेते हैं, यूनिटी लेते हैं जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसी तरह से जो लिक्विड्स हैं उनका जो मास है वो चेंज नहीं होता, मोलर मास भी चेंज नहीं होगा, और जो वॉल्यूम है वो भी सॉल्यूशन वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। इसी तरह सॉलिड्स का भी जो वॉल्यूम है क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। इसीलिए जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो मोलर कंसंट्रेशंस है वो हम यूनिटी लेंगे, 1 लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊं, मैं ये सेकंड वाला एग्जांपल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। देखिए Kc इज इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट्स में कौन कौन है, CuO सॉलिड्स, आपको मालूम है। न्यूमरेटर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशंस आएंगी, और क्योंकि यहाँ पे 2 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो वो
उसकी पावर में रेस किया जाएगा। देन NO2G की पावर 4, यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, लिखे ना लिखे एक ही बात है, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ये भी सॉलिड है और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। तो CuO सॉलिड और कॉपर नाइट्रेट सॉलिड की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो कितनी लेंगे 1, यानी कि इसका जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो हम ऐसा लिखेंगे NO2G पावर 4 O2G पावर 1 डिवाइडेड बाई नथिंग, यानी कि 1 हो जाएगा नीचे। तो केसी का करेक्ट एक्सप्रेशन इसका ये है, CuO सॉलिड और कॉपर नाइट्रेट सॉलिड की जो मोलर कंसंट्रेशन हैं वो हम कितना लेंगे 1 लेंगे। जैसे मैं आपको ये फोर्थ वाले का लिख के दिखाता हूँ, देखिए फोर्थ वाले का जो केसी है वो कैसे लिखेंगे हम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कौन है, देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड है सॉलिड में, तो इसका कितना लेंगे 1, और तो कोई है नहीं ना प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई Fe3 पॉजिटिव एक्वस पावर 3। ये इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन हो गया। फिफ्थ वाले के देखिए लिखेंगे अगर तो ये सॉलिड में अगर है IF5 सॉलिड में तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई I2 सॉलिड का 1 हो गया, और ये F2 जो होता है ना ये गैसेस स्टेट में रहता है, तो F2G पावर 5। अब देखिए जैसे ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन इसका लिखें, Kc इज इक्वल टू NOG पावर 2 Cl2G पावर 2। देखिए कैसे लिखेंगे इसके लिए, Kc इज इक्वल टू CH3COOH एक्वस C2H5OH एक्वस पावर 1 डिवाइडेड बाई C2H5 एक्वस, और H2 लिक्विड के लिए क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड विल बी 1, जैसे यहाँ लिख सकते हैं आप, बिकॉज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 सॉलिड एंड IF5 अगर सॉलिड में दिया हुआ है तब विल बी 1। अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं और उसको हम Kb से डिनोट करते हैं।
यानी कि अगर सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस स्टेट में होंगे, देन वी यूज देयर पार्शियल प्रेशर्स रादर देन देयर मोलर कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए ये एक जनरल इक्वेशन है, a plus b gives c plus d, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो Kp है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर P, वो हम ऐसे एक्सप्रेशन इसका लिख पाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, और ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो पैरेंथेसिस यूज करेंगे हम यहाँ पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ D divided by partial pressures of all the reactants, उनका प्रोडक्ट। यहां भी बात वही है, अगर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं then they will be raised to the partial pressures। भाई कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है किसी क्लोज कंटेनर में, उसमें A है, B है, C है, D है, तो भाई जाहिर सी बात है पूरा प्रेशर जो है, कंप्लीट प्रेशर कोई ए तो एक्सर्ट कर नहीं रहा होगा, पार्शियल कंट्रीब्यूशन ए का होगा, पार्शियल कंट्रीब्यूशन बी का होगा, पार्शियल कंट्रीब्यूशन सी का होगा, पार्शियल कंट्रीब्यूशन डी का होगा। तो इसलिए इस क्लोज कंटेनर में जो रिवर्सिबल रिएक्शन ए बी सी डी के बीच में हो रही है, उसमें अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन यू नीड टू यूज पार्शियल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर है उसमें से सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पार्शियली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो उनके पार्शियल प्रेशर्स अगर हमें पता होगा तो इस रिलेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर भी मेजर कर पाएंगे। ठीक है, हम Kp और Kc में भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर P। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट मोलर कंसंट्रेशन C। तो हम Kp और Kc में भी रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। यस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। कितना अच्छा लगता है बोलते हुए आइडियल। अभी तो कलयुग चल रहा है, कोई चीज आइडियल है ही नहीं। EV इज इक्वल टू NRT, है ना। तो इसमें अगर आप पार्शियल प्रेशर की बात करें तो P इज इक्वल टू N/V RT, है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और ये देखिए N/V क्या है? मोलैरिटी तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, जो कि एक तरीका है किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो मैं मोलैरिटी की जगह C यूज कर लेता हूँ। C स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पर A का पार्शियल प्रेशर लिखना हो कंसंट्रेशन की हेल्प से, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेरी गुड, CART। Similarly, partial pressure of B can be written, yes, molar concentration of B RT. Similarly, and similarly, partial pressure of D can be written as CDRT. Now, I am going to put these value in this expression. Kp के एक्सप्रेशन में मैं रखने जा रहा हूँ, देखिए। और जब इस वैल्यू में रखेंगे यहाँ पर Kp इज इक्वल टू CRT पावर स्मॉल c CDRT पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय CA
RT पावर स्मॉल a C B RT पावर स्मॉल b। मैंने देखिए RT कॉमन ले लिया और इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ C पावर C, है ना, ये तो आएगा ही, पावर तो आएगा ही, C D पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाई C A पावर स्मॉल a। ये स्टेशनरी कोएफिशिएंट्स पावर्स में आएंगे आएंगे। और देखिए क्या किया, RT कॉमन ले लिया, तो जब आप RT कॉमन लोगे तो इसको ऐसा लिखा जाता है C प्लस D, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी RT कॉमन ले लिया और जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, सम हो जाएगा A प्लस B। आप जरा ध्यान से देखिए ये क्या वैल्यू है, देखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B पावर B। ये क्या है, यस इट इज Kc सिंपली। तो हाँ वो देखिए कंसंट्रेशन तो वही, ये बात आपकी ठीक है, मैं इस पैरेंथेसिस की जगह मोलर कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूँ, है ना, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो ये जो आपके मैंने यहाँ बंद किया है इस बॉक्स में, इट इज सिंपली Kc। और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई विल राइट RT डेल्टा Ng। ये C प्लस D माइनस A प्लस B। डेल्टा Ng आपने थर्मोडायनेमिक्स में सीखा था, डेल्टा Ng इज सिंपली the difference of sum of number of moles of gaseous, yes gaseous products minus sum of number of moles of गैसियस रिएक्टेंट्स। तो ये आपको रिएक्शन में देख करके पता चलेगा कि कितने मोल्स रिएक्टेंट्स के हैं गैसियस स्टेट में, कितने मोल्स प्रोडक्ट्स के हैं। लेकिन इस इक्वेशन से Kp Kc की रिलेशन से आप डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर P एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट मोलर कंसंट्रेशन C के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ, N2G प्लस 3H2G रिवर्सिबल 2NH3G। आपको बोले राइट द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो आपको एक पूरा डेरिवेशन करने वाले नहीं है, आप सिंपली कैसे लिखने वाले हो, Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। और डेल्टा Ng कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, इस तरह से सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने देखो 2 माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 3 मोल्स इसके और 1 मोल इसका है 4, तो कितना आ गया आपके पास -2 आ गया। यानी कि जो रिलेशन है दैट विल बी Kp इक्वल टू Kc RT पावर -2। तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे जिसमें Kp की वैल्यू दी होगी और Kc कहेंगे पता कर लो, या Kc दिया होगा तो Kp पता कर लो। यहाँ पर जनरली जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर ही रहता है, वरना टेम्परेचर वहां दिया होगा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। और जो R की वैल्यू है वो हम 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का एक न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए उसमें एस्टैब्लिश होगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc और Kp की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो देखिए कितना आसान प्रॉब्लम ये रहते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc
RT पावर डेल्टा N। डेल्टा एन जी भी लिख देंगे, एक ही बात है। तो देखिए डेल्टा एन जी यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने, 2 और 1 कितना आ गया 3, माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यहाँ पे 2 मोल से तो ये 1 आ जाएगा। सो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन जी कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब हम Kp की वैल्यू दी गई है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2 Kc R की वैल्यू, और टेम्परेचर जब नहीं दिया तो अंडरस्टूड है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही होगी। 500 केल्विन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सॉरी। तो अगर टेम्परेचर दिया हुआ तो वही हम अप्लाई करने वाले हैं 500 केल्विन पावर 1। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, केसी आपको मिल जाएगा। देखिए सब बच्चे, Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng या डेल्टा N लिखा जा सकता है केवल। Kp की वैल्यू दी हुई है 167 इज इक्वल टू Kc फाइंड करना है आपको, R 8.314, टेम्परेचर इज 1073 केल्विन, डेल्टा Ng देखिए यहाँ पे केवल CO2 ही तो है गैसियस फॉर्म में, तो 1, और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका सॉलिड फॉर्म में, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल फाइंड द केस।